earlier in the example we covered was hedging. That means either you are an importer or an exporter. So you had an underlying transaction and you went to the stock market to cover yourself, okay, to take hedging against your underlying transaction. Now you are not a hedger. Neither you are an importer nor you are an exporter. You are just a mere speculator. Okay, fine. So example on using currency futures. Here you are a speculator. Now X is a speculator. Okay, he is bullish on dollar. Now he can be bearish or he can be bullish. But we are taking one example of bullish. Bearish can be. I have not given an example, but it's the same thing. Okay, so X is bullish. Okay, on 29th of January 2024, when he opened the screen, he found that he was thinking about speculating in dollar. So he's bullish on dollar. He speculates for 27th February 2024 because when you go to the stock exchange, there are 12 monthly contracts which are available. So you can choose any month to speculate. So you're in the month of January. So you thought, okay, I'll speculate for 1 month. Normally, most of the transactions are happening one in the next month or next 2 months. I mean, when you go to the stock market, the near month will have the maximum transaction. But here, because the currency, that it will depend upon which month you are speculating or which month your payment is falling or you're getting your payment from abroad. So on 29th of January, X speculates for 27th February 2024 contract worth $1 lakh. Now he thinks the price is going to go up and he's going to make money. Okay, he's a speculator and he is bullish on dollars. That means he expects the dollar to appreciate against the rupee. Okay, so dollar future is trading at 83.23. Okay, I made it to up to 2 decimal places to make the example simple. Expiry is on 27th of February. Expiry in monthly contract happens 2 days before the close of the month. Okay, so it is going to happen on 27th of February. So what he has done, he's going to speculate for $1 lakh. So that means he has to take position in 100 contracts. So what he's going to do, he buys or he takes a long position on currency futures at 83.23 or he buys 100 contracts. Okay, what he'll do, he'll go and buy 100 contracts, okay, of US dollar versus INR pair. At what price? 83.23. Now, the moment he does, he has to pay the margin money. Even when you're a hedger, you're paying margin money. Even you're a speculator, you have to pay the margin money. Okay, he pays the margin money. Now, what happens is that he has actually bought dollars at what price? 83.23. Okay, fine. I have bought from, say, for example, I bought it from Manu. Manu ka hai? Manu. I bought dollars from Manu. Suppose we were within the stock exchange and I was buying dollars from Manu. And Manu says, okay, I bought and he sold the dollars to me at 83.23. Okay. Now, what happens is the dollar price goes up. Even before the expiry, the dollar price is going up. Okay. It can go up or go down. Either I can make money or I can lose. I mean, every day that dollar price is going. So I want to book my profit before the expiry. That means I will not wait till expiry. On 10th of February, futures contract is trading at 83.53. So at what price I bought? 83.23. तो अभी मुझे प्रॉफिट चल रहा है, isn't it? मुझे 20 पैसे का कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है. Okay, fine. So he squares up his position to book the profit. So what he has to do? He has to square up. Square up means now I am going to sell dollars at 83.53. Not to Manu. What I'll do? I'll go to Suraksha and says कि मैंने आपको डॉलर बेच दिए, इन्होंने खरीद लिए मुझसे. Okay, fine. Because I was bullish and I am selling and she's doing what? She's buying. Okay. हाँ, अब आगे के लिए ये बुलिश है, मैंने तो बाहर निकल रहा है, मैं तो अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो मैंने सेल कर दिए टू सुरक्षा. ओके, बिकॉज फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट विद मी एंड हिम वाज अप टू 27th of February. ओके, और आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी 27 फरवरी तक होगा, उसी महीने में मैं करूंगा. मैं सेम मंथ में ही मुझे स्क्वायर अप करना पड़ेगा. स्क्वायर अप मीन्स टेकिंग अ ऑपोजिट पोजिशन इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट मंथ. जिस महीने में मैंने खरीदा था उसी महीने में मुझे बेचना पड़ेगा. ओके, एक पार्टी तो सेम रहेगी,
बेचने खरीदने वाली पार्टी बदल गई. ओके, नाउ ही सेल्स 100 लॉट्स एट 83.53. The moment I sell, first I bought, now I have sold. Okay, no margin required because the second leg is just the opposite of the first leg. अब मुझे कोई मार्जिन जमा कराने की जरूरत नहीं है because the stock market will recognize that I have once bought and now I have sold. My position is squared up and I will be getting a profit of 30,000 rupees. Okay, fine. अब मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो गया, मैंने बेच दिया. अब ये ट्रांजैक्शन, मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो बंद हो गई. ओके, margin will get released. So I made a profit. So I booked my position. I booked my profit by taking yet another position by selling dollars. I have first bought dollars. Now I have sold dollars. Okay. So एक बाई कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है. दोनों आपस में मुझे जो है, अगर सपोज दोनों कॉन्ट्रैक्ट चल भी रहे हैं फर्क तक, तो एक में मैं गेन कर रहा हूँ, एक में लूज कर रहा हूँ. मैं तो 30,000 ही गेन हो रहा है ना मुझे. देखो मैंने किसी को, इनको कितने में बेचा था? 83.23 में. और आपसे मैंने कितने में खरीद लिया? आई हैव सोल्ड टू यू एट 83.53. मैंने आपको बेच दिया. अब अगर डॉलर प्राइस सपोज 85 का हो जाता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नुकसान है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है. तो इसका मतलब कि मेरा जो है 30,000 रुपए का प्रॉफिट ही रहेगा हमेशा. गॉट इट नॉट? क्योंकि बाकी उसके बाद जो भी होगा, द प्रॉफिट एंड लॉस विल गेट कैंसिल्ड आउट बिकॉज ऑफ द टू ऑपोजिट पोजिशंस. गॉट इट? नहीं समझ में आई? ओके, सपोज मैंने So you can book your profit by taking a opposite position before expiry. If you have bought it, now you're going to sell it. It's called squaring up. फाइन. तो अब क्या रह गया? देखो आज की डेट में हम 3 लोग थे. अब मन्नू और सुरक्षा का एक इसकी पोजीशन है, एक आपकी पोजीशन है. इसने बाई करा हुआ है, आपने सेल करा हुआ है. आपने क्या करा था? मुझे बाई करा. इन्होंने क्या करा था? सेल. तो आपकी एक पोजीशन बैठी हुई है. भाई स्टॉक एक्सचेंज में तो 2 आदमी, एक ओपन पोजीशन तो है ही, तो आपस में सेटलमेंट हो जाएगी. उसके ऊपर ही सेटलमेंट होगी. स्टॉक एक्सचेंज को किसी से लेना देना नहीं है इंडिविजुअल से. स्टॉक एक्सचेंज को किसी इंडिविजुअल को देखता ही नहीं है. तो उसको देख रहा है एक पोजीशन बाई की पड़ी है, एक पोजीशन सेल की पड़ी है, अभी भी खड़ी हुई है. तो अब जो आगे का गेन लॉस होगा वो या तो इनको गेन होगा या आपको लॉस होगा, कोई कुछ भी होगा. गॉट इट? तो मेरी पोजीशन से मैं निकल जाऊंगा बाहर. अब पोजीशन जो रह जाएगी वो आप दोनों में, मतलब 2 आदमी बने रहने चाहिए हमेशा स्टॉक मार्केट में. जब मैंने पोजीशन आपसे ली थी तो एक पोजीशन थी, ओपन पोजीशन. अब मैंने आपके साथ एक पोजीशन ली तो मेरी पोजीशन क्लोज हो गई. आप दोनों की पोजीशन अभी बनी पड़ी है. एक ने खरीदा हुआ, एक ने बेचा हुआ. फाइन, समझ गया? स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? स्टॉक एक्सचेंज तो ये मान रहा है कि 2 पोजीशनें जो है आपस में अपोजिंग पोजीशन खड़ी हुई हैं. इज दैट ओके?
ये समझ आ गई बात? तो अब अगर आपने स्क्वेयरिंग अप करनी है तो आपको जब भी आपको लगे एक्सपायरी से पहले अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप बेच के निकल जाओ। आपने बेचा, आपने प्रॉफिट कमाया, आप बाहर हो गए, फाइन। जो बाकी लोग हैं वो रह जाएंगे, जो जब आगे सोचेंगे कि उन्होंने क्या करना है वो तो उनका काम है। इज दैट गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर बुकिंग बिफोर एक्सपायरी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका रूल क्या है कि इफ यू हैव टेकन अ बाई पोजीशन यू हैव टू सेल, इफ यू हैव टेकन अ सेल पोजीशन यू हैव टू बाई। ओके। और सेम कॉन्ट्रैक्ट मंथ में अगर आपने ये महीने लिया था फरवरी में, तो फरवरी में बेचना खरीदना होगा। ये नहीं कि आपने फरवरी में खरीदा और मार्च में बेच दिया, वो नहीं कर सकते आप। ओके। इन द सेम मंथ you have to take the opposite position. Now the people can change, that you're not worried. फाइन। आपको ही नहीं है कि मैंने किसको बेचा किसको खरीदा। मैंने जब पहले खरीदा था तो मुझे क्या पता मैंने किससे खरीदा था। इज इट ओके? हाँ जी, क्या हो जाएगा? नहीं, ये पोजीशन तो मैंने आगे बताया कि मेरी दोनों पोजीशन खड़ी हुई है, मेरी पोजीशन तो खत्म हो चुकी है ना। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया कि मैंने माना कि ये दोनों पोजीशन अभी भी खड़ी है, ऐसा होगा ही नहीं ना। मतलब अगर मान लेते हैं हम उसी मंथ में नहीं, मतलब अपोजिट पोजीशन लेते। हाँ हाँ, अगर सपोज 83.53 पे महीना क्लोज हो गया तो मुझे 30 पैसे मिल जाएंगे उस दिन की। लेकिन मैंने पहले निकल गया तो पहले निकल के मैं 30 पैसा कमा के निकल गया। और हो सकता है कि रेट कम आ जाए तो मैंने, मुझे लग रहा है कि अभी डॉलर रेट बढ़ गया, मुझे 30,000 का फायदा है, मैं निकल जाता हूँ। हो सकता है कि आगे मेरा डेट जो है वो 83.23 की जगह 83.53 की जगह 82.90 हो जाएगा। अगर मैं पोजीशन को आगे ले जाता टिल एक्सपायरी तो हो सकता है कि मैं लॉस में निकलता। तो मुझे लगा कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करो, ज्यादा ग्रीडी मत बनो, क्लोज करो, बाहर निकल जाओ। I can even lose money if I waited till the expiry. Got it? ये याद रखना है कि आपके क्विज में अभी जो मैं दूंगा उसमें काम आएगा आपके। ये एग्जाम्पल काम नहीं आएगा। आप स्क्वेयरिंग कौन से महीने में करते हैं? सेम मंथ में करते हैं। इफ यू आर टेकन अ लॉन्ग पोजीशन टेक अ शॉर्ट पोजीशन टू क्लोज इट। इफ यू आर टेकन अ शॉर्ट पोजीशन टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन टू क्लोज द ट्रांजेक्शन। इज दैट ओके? यस ऋतु बताइए। हाँ जी, हाँ इंटरडे भी कर सकते हो, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, दैट्स कॉल्ड इंटरडे ट्रेडिंग। हाँ, आपको अभी भी कोई महीने की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको तो 30 पैसे उस दिन मिल जाएगा जिस दिन आपने बेचा। पहले लॉन्ग ली फिर शॉर्ट ली, आपने जिस दिन लॉन्ग शॉर्ट ली आपको पैसा मिल जाएगा। ओके। मैंने आपको बताया था कि वो जो जो पोजीशन होती है बायर सेलर का, उसको एक ओपन पोजीशन मानो। ओपन पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। जब मैंने खरीदा था तो एक पोजीशन थी ओपन मेरी और मनु की, फिर मैंने बेच दिया सुरक्षा को तो मेरी पोजीशन तो क्लोज हो गई। ओके, क्योंकि मेरी एक बाई पोजीशन थी, एक सेल आपस में क्लोज हो गई। ओवर। अब दो पोजीशन है, एक बाई एक सेल, एक ओपन पोजीशन खड़ी हुई। स्टॉक एक्सचेंज में तो पोजीशन चाहिए ना कि आपस में कोई सेटलमेंट रहना चाहिए ना। तो एक सिर्फ बायर रह जाए और सेलर ना रहे ऐसा तो होगा नहीं, बायर भी एक सेलर भी चल रहा है। So if you have taken a long position, you have to take a short position in the same month to close the position. जब आप सेकंड पोजीशन लेते हैं तो आपको कोई मार्जिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी पोजीशन भी क्लोज होगी। सेकंड लेग जो है, फर्स्ट लेग था बाई लेग, सेकंड सेल लेग था। सेल लेग में मुझे कोई मार्जिन देना नहीं क्योंकि दैट वाज ऑपोजिट पोजीशन ऑफ फर्स्ट पोजीशन। याद रखिए एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कितना मार्जिन देना पड़ेगा सेलर को। अगर पहले उसने बाई करी है तो जीरो मार्जिन, there is no margin requirement for the second position. First position के लिए margin है 2.25% or whatever. परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन तो सिर्फ ऐसे ही आएंगे। ओके ओके। सो करेंसी डेरिवेटिव्स, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 4 पेयर्स में अवेलेबल है। डॉलर वर्सेस यूएस, यूरो वर्सेस इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, पाउंड और जापानीज येन। इन करेंसी में ही आप जाके फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फिर क्रॉस करेंसी पेयर्स भी हैं, यानी कि यूरो वर्सेस यूएसडी, पाउंड वर्सेस यूएसडी, ऐसे क्रॉस करेंसी पेयर्स भी अवेलेबल हैं स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप चाहो तो। ओके, सो दे आर यूज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू हेज देयर करेंसी पोजीशन। तो इसका पर्पस क्या होता है? एमएनसी यूज करते हैं इसको ज्यादातर हेजिंग के लिए। स्पेकुलेशन के लिए तो कोई भी यूज करता है, हम भी कर सकते हैं। दिस इज अलाउड ओपन टू पब्लिक। ओके, the contracts can be traded by firms or individuals through brokers on the automated trading systems, that is नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कर सकते हैं इन द मॉर्निंग व्यू। अब कल हम दोबारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे, तब आपको हम स्टॉक एक्सचेंज दिखाएंगे।
सो दे हैव टू मेंटेन अ मार्जिन, उन लोगों को मार्जिन जमा कराना पड़ता है सेकंड में। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है जाके आप जो है पोजीशन ले सकते हैं, सेम रेपिटेशन है। और टिक साइज 0.25 का होता है, करेंसी का टिक साइज 0.25 के हिसाब से मूव करता है, 0.0025, 0.0050। ओके, सो INR 0.0025 रहेगा। ट्रेडिंग आवर्स बिटवीन 9 AM टू 5 PM रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 12 महीने के इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, और 11 वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। ओके, विद दैट आई एक्सप्लेन टू यू, आई एम जस्ट skipping। लास्ट ट्रेडिंग डे जो होता है वो 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द लास्ट बिजनेस डे। एक्सपायरी कब होती है, 2 दिन पहले महीने के क्लोज होने से पहले। जैसे हमने देखा 27 फरवरी को क्लोज हो रही है, 28, 29, 27 को क्लोज हो जाएगी, 27 लास्ट 2 डेज क्लोज हो जाएगी। और फाइनल सेटलमेंट जो होती है वो यही लिखा है कि सैटरडे को छोड़ के, अगर सैटरडे पड़ता है तो फिर 2 वर्किंग डेज प्रायर टू होता है। ओके, सो डेली सेटलमेंट प्राइस, ओके, और फाइनल सेटलमेंट जो होता है वो RBI के प्राइस से सेटल होता है, और डेली सेटलमेंट जो होता है फ्यूचर के प्राइस से सेटलमेंट होती है। और जो फ्यूचर का प्राइस होता है, याद रखिए कि जो फ्यूचर प्राइस होता है आखिरी घंटे में 4:30 से 5 का जो प्राइस होगा उसका वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाता है फॉर सेटलमेंट, कि आपको कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि आखिरी घंटे में कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है, प्राइस बड़ा वोलेटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, मैनिपुलेशन तो नहीं है, देयर कैन बी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी हैपनिंग इन द लास्ट हाफ एन आवर। सो ऑलवेज फॉर स्टॉक मार्केट एज वेल एज फॉर करेंसी फ्यूचर्स, लास्ट आधे घंटे का जो प्राइस एवरेज प्राइस होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर आपकी गेन या लॉस निकाला जाएगा। अगर आपने निकलना है, आपने अगर स्पेकुलेटर हो, आप पहले निकल रहे हो, तो वो लास्ट हाफ एन आवर का प्राइस लिया जाएगा। ओके, या जिस प्राइस में आपने बेचा, अगर सपोज, वैसे तो लास्ट प्राइस तो वो गिनेगा नहीं, स्पेकुलेशन में तो आपने उस प्राइस में बेच दोगे आप जो चल रहा था मार्केट में। लेकिन फॉर डेली सेटलमेंट आपका जो है हाफ एन आवर का प्राइस का एवरेज लिया जाता है। इट इज ओनली फॉर डेली सेटलमेंट, नॉट फॉर एग्जिटिंग पोजिशन, जो मैंने आपको बताया। इज दैट ओके? कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज जो है वो 1000 का है, $1000, 1000 euros, 1000 pounds, एंड फॉर येन इट इज 1 लाख। तो दिस इज लॉट साइज, इस लॉट साइज के हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हो आप। फाइन, इट्स अ स्टैंडर्ड मार्केट, इट्स नॉट, यू कांट कस्टमाइज द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन सेटलमेंट, करेंसी फ्यूचर्स इन इंडिया आर कैश सेटल एंड नॉट फिजिकली सेटल। ये मैंने आपको बताया था, उसकी कैश सेटलमेंट होती है, कोई फिजिकल सेटल, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, आपको या तो रुपया देना पड़ेगा, या आपको रुपया लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सेटलमेंट डेली भी है और फाइनल भी है। If you don't close your currency future contract before expiry, the reference rate fixed by RBI will be considered for the closing price. Is that okay? ये समझ आ गई? अब फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो है RBI का है, ओके, और वो जो है आपको प्रेस रिलीज के द्वारा वो प्राइस डिक्लेयर करती है ऑन द एक्सपायरी डेट। हाँ, जो एक्सपायरी का प्राइस, जिसमें कि अल्टीमेटली आपको कितना फायदा कितना नुकसान है, रोज के रोज तो चल रहा है, आखिरी प्राइस जो होगा वो स्पॉट प्राइस लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में जो कैश सेगमेंट का प्राइस होता है, जो कैपिटल सेगमेंट का प्राइस होता है स्टॉक का, वो लिया जाता है। रिलायंस का फ्यूचर प्राइस दिया जाएगा, रिलायंस का स्पॉट दिया जाएगा, आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, बट वी आर नॉट डूइंग स्टॉक मार्केट। ओके, डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, मैंने आपको बताया कि रोज सेटलमेंट होगी डेली बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्राइस, क्योंकि RBI का प्राइस नहीं लिया जाएगा, RBI का प्राइस सिर्फ आखिरी देखे सेटलमेंट के लिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज गेन एंड लॉसेज आर सेटल्ड ऑन ईच ट्रेडिंग डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is basically a foolproof mechanism that there is no counterparty risk involved in a transaction. There is, I mean, all the transactions are carried out smoothly without any back this thing. हाँ, फ्यूचर्स के जो फ्यूचर की जो डेली सेटलमेंट हो रहा है वो फ्यूचर का प्राइस का आधे घंटे का एवरेज है, स्पॉट का नहीं। जो आपका रोज का नफा या नुकसान आपके अकाउंट में जा रहा है, मिल रहा है, जो डेली सेटलमेंट हो रहा है उसका, उसके लिए हाफ एन आवर। आखिरी के लिए तो RBI का जो स्पॉट प्राइस है वही लिया जाएगा। हाँ, दिस एक्सरसाइज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। दिस मींस द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू मार्केट। ओके, देन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स, ये तो ठीक है, कोई नहीं। फाइनल सेटलमेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, NSE क्लियर्स आपका ट्रांजैक्शन क्लियर कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। सो ये कुछ नहीं है, सेटलमेंट प्राइस ये मैंने आपको बता दिया था, दोबारा रेपिटेशन स्लाइड है ना। और अब आता है ये लास्ट स्लाइड है आज की, इसको देखिए। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट साइज कस्टमाइज्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी पैसे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। $5,335 का मुझे देना है किसी आदमी, आई कैन गो टू द बैंक एंड से इसकी मुझे इतने पैसे देने फलाना फलाना डेट, आई कैन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट इन फ्यूचर्स इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, दिस इज अ लॉट साइज। ओके, $1000 का लॉट साइज, 1000 पाउंड्स का लॉट साइज है, 1000
यूरोस का लॉट साइज है 1 लाख yen का, तो उसी में मुझे चलना पड़ेगा। आइदर आई विल टेक अ पोजीशन इन द लॉट साइज, उतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे खरीदने पड़ेंगे बेचने में। मैं एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता अपनी पेमेंट के साथ। Fine, it can be odd numbers, this cannot be. Trading informal over the counter. So I have to go to the bank, okay, and say that I want to purchase dollars in a forward market. Traded on the exchange, which is your exchange में होती है. Participant banks, brokers, MNCs, public speculation not encouraged. There, the same, but speculation is encouraged. वहाँ speculators भी होते हैं, 99% तो speculator होते हैं. सेटलमेंट सिंगल प्री स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उस दिन सेटल हो जाता है जिस दिन आप जाते हो बैंक में, मुझे भैया डॉलर दे दो, है ना, या डॉलर दे दो या डॉलर मेरे ले लो, मुझे पैसा दे दो। आई एम एन एक्सपोर्टर, आई एम गोइंग टू गेट डॉलर, सो आई हैव टू गिव द डिलीवरी ऑफ डॉलर और आई कैन टेक अ डिलीवरी ऑफ डॉलर, आइदर गिव डिलीवरी और आई टेक डिलीवरी ऑफ डॉलर्स। डेली सेटलमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट, इज दैट ओके? देन risk, counterparty risk is present in case of forward contract, counterparty risk है, लेकिन आप जब बैंक के साथ डील कर रहे हो तो उसमें counterparty risk नहीं होता, लेकिन आप किसी और इंडिविजुअल के साथ कर रहे हो तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी आदमी से, मैं आऊंगा आपसे टीवी खरीद लूंगा, हमें जब गया शॉपिंग को किया, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा 5 लाख का था, अब वो टीवी 8 लाख का हो गया, वो तो मैं कैसे दे दूंगा 5 लाख का, नहीं देता, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट में चैलेंज करो। सो देयर इज ऑलवेज अ counterparty risk there. Okay. But in that case, exchange provides guarantee of settlement and hence no counterparty risk. Because, and why there is no counterparty risk? Because there is a margin money requirement, there is a daily settlement, mark to market settlement. Marketplace, worldwide telephone network. आप टेलीफोन करते हैं अपने बैंक को और बोलते हैं कि मुझे जो है फरवरी में पेमेंट करनी है, मार्च में पेमेंट करनी है, बुक योर कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन गो टू द मार्केट, टू द बैंक। वहां पर क्या है? There is a stock exchange now. Of course, it's all on the laptop. There is a terminal.